براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے یہ موقع دیا کہ اس کے کلام کی باتوں سے سیکھ سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام میں پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس اہم تہوار پر آپ سب کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، اپنی پہچان اور آشنائی میں اور بڑھائے، تاکہ ہم خود بھی بابرکت رہیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت اور سلامتی بنتے چلے جائیں۔ عید لفظ کا مطلب ہے بار بار آنا، ایسا دن جو بار بار سال ہا سال آتا رہے، اور عید کے ساتھ خوشیوں اور محبتوں اور مسرتوں کا خیال آتا ہے، اور یہ خوشی، یہ مسرت دنیاوی بھی ہے اور آسمانی اور روحانی بھی ہے۔ خدا کرے یہ ہمارے دل کی صدا بن جائے کہ نہ صرف یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ خدا کے طالب ہونا صرف ایک دن سال میں یا 2 دن سال میں نہیں، بلکہ ہر روز، ہر دن ایسا دن بن جائے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ خدا کے دل کی خواہش ہے، انسانی رہنماؤں کے دل کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ اعمال سب کے سامنے ہے، تصویر سامنے واضح ہے۔ جو کچھ رمضان کے مہینہ میں پوری دنیا میں ہم نے دیکھا، موت کی ہولی کھیلی گئی، معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ اب بھی اگر ضمیر نہ جاگے، اب بھی اگر ہمارے سوئے ہوئے احساسات نہ جاگیں، اب بھی اگر ہم مذہب کے لبادے میں اپنی زندگیاں گزارنے سے باز نہ آئیں، تو نہ جانے کب ہم آسمان کے خدا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ BBC پر جناب محترم ریاض سہیل صاحب نے چند دن پہلے لکھا، ان کے کالم کا عنوان ہے شیطانیت اور رحمانیت دونوں عروج پر ہیں۔ اے اہل مسیحت، اے اہل اسلام، پوری دنیا کے مکتبہ فکر کے لوگوں، شیطانیت اور رحمانیت دونوں عروج پر ہیں۔ اب آپ رحمانیت کی پیروی کر رہے ہیں یا شیطانیت کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ کے اعمال، آپ کے پھل کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ضروری ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، بزرگوں کے لیے، رہنماؤں کے لیے، کہ آپ رحمانیت کے سایہ میں ہیں یا شیطانیت کے سایہ میں ہیں۔ یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، امتیاز بہت ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ خدا کے کلام کی روشنی میں، خدا کی نزدیکی اور قربت میں آ کر ہمیں وہ پہچان عطا فرماتا ہے۔ رحمانیت عروج پر، شیطانیت عروج پر۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی تعلق سے ہے کہ بدروہیں، شیطان کی طاقتیں، ان سے رہائی کیسے پائیں اور ان پر فتح مند زندگی کیسے گزاری جائے۔ بہت سی شخصیات، الہی ہستیاں، علماء، انبیاء اکرام، اساتذہ پوری دنیا میں تھے، ہیں اور شاید رہیں گے، اور جب حضور المسیح اسلام میں، عیسیٰ المسیح، خداوند یسوع المسیح، اسلام میں ان کو نبی مانا جاتا ہے، مسیحیت میں ان کو خداوند مانا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت سے ہم کیا متعارف ہیں، پہچان ہے؟ ان کی خدمت کا ایک بڑا حصہ لوگوں کو شیطان اور بدروحوں سے رہائی دینے میں گزرا۔ مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اس عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، اگر لوگ بدروحوں کے قبضہ میں ہیں، شیطان کے قبضہ میں ہیں، جادو کے اثر کے نیچے ہیں، تو ایک شخصیت ان کے اس غم کو خوشی میں بدل سکتی ہے جب وہ زمینی خدمت میں تھے۔ تو آئیے مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا باب ہے مرکز کی انجیل کا،
और उसमें पहले बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो वो किस तरह से लोगों को बदरूहों से, अबलीस के बंधनों से आजाद करते थे, और आज भी वो जिंदा हैं। तो एक वाकया, जब वो एक गांव में दाखिल होते हैं तो वहां क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं मरकज की अंजील पहला बाब 21वीं आयत से। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। यहां पर वाज़ेह बात है कि इबादत खाना में मजहबी जगह है, इबादत की जगह है, तालीम देने लगा। तालीम जरूरी है, वो तालीम देने लगा। पहले भी लोगों के पास तालीमात थी, लेकिन वो फिर उनको तालीम देने लगा, सिखाने लगा आसमान की बादशाहत के असूल, आसमान की वो तालीम जो जमीन पर इंसानों के लिए जरूरी है। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे छिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। अगर आप चारों अनाजील का मुतालिया करें तो हुजूरुल मसीह इन अनाजील में जो लोग बदरूहों के कब्जा में थे उनको छुड़ाते थे। फिर अनाजील में ही लिखा है कि हुजूरुल मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि जाओ बदरूहों को निकालो, बीमारों को शिफा दो। बाइबल में बहुत वाज़ेह तालीम पाई जाती है और आज भी लोग मुख्तलिफ तरह से बदरूहों की वजह से दुखों में से गुजरते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह जो जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, वो भी अपनी पूरी कुदरत और इख्तियार के साथ अपनी मोहब्बत और शफकत में आज़ाद आज भी लोगों को करते हैं। और उनके जो खादिम हैं वो भी ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने आज दावत दी और वो हमारे दरमियान हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, एक ऐसा खुदा का खादिम, ऐसा सूरमा जिसको खुदा ने एक हिंदू ख़ानदान से बुलाया। उनकी अपने फैमिली में, ख़ानदान में बहुत से लोग बदरूहों के कब्ज़ा में थे। खुदा ने उनको आज़ादी दी, यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया। उनकी वालिदा को एक लाइलाज बीमारी थी, यीशु मसीह ने उनको भी शिफा दी। और पूरी दुनिया में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि मैं जानता हूं, मैं उनके साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर गया और मैंने देखा खुदामंद पूरी दुनिया में उनको अपनी बड़ी कुदरत, बड़े फजल से इस खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है। आपका भी कोई सवाल हो इस ताल्लुक से जरूर कॉल कीजिए, हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है। मुतारफ करवाना चाहता हूं जनाब मोहतरम बिशप अंबा कुंजाया साहब। सर खुश आमदीद। थैंक यू डॉक्टर डैनियल साहब। आज का मौका के लिए मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा खुदा जिंदा है, जिंदा खुदा है और खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा का कलाम से हम काफ़ी सीख सकते हैं इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया बिशप साहब। मैं वक्त हमारे पास महदूद होता है तो मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपसे करूं। आप पहले ये बताइए कि ये बदरूहें क्या हैं, इसके ताल्लुक से कलाम में क्या लिखा है? बदरू है एक रूह के तौर पर हम रूहानी का चीज़ें हैं
और कलाम में दो किस्म का एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि बदरू है एक प्री एडामिक, आदम के पहले एक दुनिया था, उस दुनिया का लोग है। जी, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है, आदम से पहले एक तस्वुर है कि आदम से पहले भी एक दुनिया थी, ये उस दुनिया के जो लोग थे ये उनकी रूहें हैं। हाँ जी। और एक और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये गिरे हुए फरिश्ता का रूह है, गिरे हुए फरिश्ते हैं, फरिश्ते उनकी हैं। रूहें हाँ हैं। जी। ठीक है, तो कैसे समझे लोग इनको, हकीकत क्या है, फिर कैसे जाना जाए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई लोग बदरू के खबसे में हैं, उनका फल से हम पता कर सकते हैं, फल से देख सकते हैं कि ये बदरू का काम है। और रूहानी तौर पर और थियोलॉजिकल तौर पर तो मैं तो उसमें जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मिनिस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जिसके ऊपर मैं बदरू का काम देखता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह हमें इसे हुक्म दिया कि जब आप बदरू के देखते हैं, उनके नाम से बदरू को निकालें और लोगों को आज़ादी दें। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने बताया कि इसके बारे में हमें फलों से, नाजरीन जो थ्योरीज हैं, जो ख्यालात हैं, वो तो मुख्तलिफ उलमा के हैं, लेकिन बिशप साहब ने ये बात वाज़े की कि हमें उनके फलों से पहचानना है, उनकी हरकत व सकनात से, उनके अमाल से भी हम पहचान सकते हैं कि ये एक आम इंसान जिसको नॉर्मल इंसान कहते हैं, ये उसके काम हैं या ये शैतानी काम हैं। बदरू के असर के नीचे ये काम किए जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। तो बदरूहें कैसे इंसानों में दाखिल होती हैं, क्यों होती हैं? बदरू इसलिए होता है कि पहला उनका मकसद यही है कि खुदा का लोग हो, जिस दुनिया में सब खुदा का लोग हैं, और खुदा का लोग हो उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए वो खपसा करते हैं। और उनकी ज़िंदगी में जो खुदा का ब्लेसिंग होता है, लाइक पीस, जॉय और इस तरह का चीज़ें, वो क्या करते हैं कि रॉब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वो खुदा को वो इकरार करें और ज़िंदगी में बिटर एक्सपीरियंस में जाएं। इसलिए वो बदरू ना लोगों को कब्जा करता है। तो खुदा क्यों नहीं रोकता बदरूहों को कि वो कब्जा ना करें? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर शख्स ही पूछना चाहेगा कि क्यों खुदा रोकता नहीं, बदरूहें कब्जा कर लेती हैं। इसके लिए क्या बाइबल बयान करती है, क्या आपका तजर्बा है? आपका तो एक लंबा तजर्बा है, खुदा ने आपको सिखाया भी, खुदा रोकता क्यों नहीं? नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो हम खुदा के बारे में अगर जानना चाहते हैं और खुदा का लफ्ज़ से हम ओबीडियंट करें, फिर तो बदरू हमारा नज़दीक और हमें कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे चले गए, दुनिया में ऐसे गुनाह भरा हुआ है, सो गुनाह के वजह से दरवाज़ा खोल जाता है इब्लीस और बदरू लोग को अंदर आने के लिए। गुनाह एक दरवाज़ा है वो इब्लीस आने के लिए। बिशप साहब, आप कह रहे हैं गुनाह है, तो रोमियो के ख़त में ये लिखा हुआ है कि सब ने ही गुनाह किया है। यसाया की किताब में है कि सब गुनाहगार हैं। तो ये तो दरवाज़ा आदम की ज़िंदगी से खुल गया था, तो इस वजह से तो फिर सब लोगों को बदरूहों के कब्जा में होना चाहिए। तो इसको बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जिन लोग दुनिया में हैं, अगर खुदा के साथ नहीं है, खुदा उनके अंदर नहीं है, ठीक है, सपने इस दुनिया का और बदरू का नीचे है। दुनिया शैतान के नीचे है। यूहन्ना के तीसरे खत में लिखा हुआ है, पहले खत से तीसरे खत में ये मिलता है हमें कि सारी दुनिया इब्लीस के कब्जा में पड़ी हुई है, के कब्जा में पड़ा है, और खुदावंद उसमें से निकालता है उनको। हाँ जी, हाँ जी। और एक और, अगर कुछ लोग का अंदर बदरू अंदर आ जाता है और घर के अंदर आ जाता है, कभी जादू करते हैं लोग, जादू की वजह से भी किसी फैमिली को जादू करते हैं, बदरू उनका कब्जा करता है। और कभी कुछ लोग ऐसे हैं खुदा का कलाम से ऑपोजिट लाइफ ज़िंदगी
में गुजरते हैं और खुदा एंजॉय के करते हैं। कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं हाँ जी, और वो भी इब्लीस के कब्जा में, बदरूहों के कब्जा में चले जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल जाता है। दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि लोग चलें इस कब्जा में चले गए हैं तो कुछ लोग कहते हैं जी ये बदरू का काम नहीं है, ये कोई साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिकल मसला है, कोई नफ्सियाती मसला है। साइकोलॉजिकल उर्दू में नफ्सियाती कहते हैं। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं जी ये नफ्सियाती है, ये बदरू का काम नहीं है। सो डिस्टिंग्विश कैसे करें, फ़र्क कैसे करें? ये ना एक्सपीरियंस में आता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, खुदावन यीशु मसीह ने हमें कहा कि 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हमें दिया। एक गिफ्ट है डिसर्नमेंट। ये पाक रूह की नेमतों की बात कर रहे हैं बिशप साहब के। एक है रूहों का इम्तियाज करना। हाँ जी, उस डिसर्नमेंट में हमें पहचान सकते हैं कि ये क्या बदरू का काम है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग का होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ है ज़्यादा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा होंगे ये बदरू का काम है। बदरू का काम है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, काफ़ी लोग का डिप्रेशन है। डिप्रेशन आते हैं क्योंकि कभी शौहर उनको छोड़कर चला जाता है, उसी की वजह से वो औरत को डिप्रेशन हो जाता है। और कुछ लोग को डिप्रेशन होते हैं कि नौकरी नहीं मिलती किसी को, नौकरी नहीं मिलती और कभी उनका बीमार हो जाता है, शिफा नहीं मिल रही, सो डिप्रेशन हो जाता है। सो डिप्रेशन एक चीज़ है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है। और कुछ है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, साइकाट्रिस्ट काउंसलिंग में वो बेटर जिंदगी में आ जाते हैं। और कुछ लोग हैं बदरू के कब्जा में डिप्रेशन होते हैं। सो ये नहीं सब डिप्रेशन है वो बदरू का कब्जा में हर है। बीमारी और हर डिप्रेशन के पीछे बदरू नहीं है। हाँ जी। वो जिस्मानी भी हो सकती हैं बातें। सही। जी बहुत शुक्रिया बिशप साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी पाकिस्तान से हमारे साथ कॉलर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा मौजू है बदरूहों से रिहाई और उन पर फतह। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। सलाम जी डॉक्टर दानियाल साहब, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। बहुत शुक्रिया, आपकी भी सलामती हो। जिंदगी टीवी के, हाँ जी, जिंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और सबसे बेस्ट मेरी फेवरेट ये फजले रब्बी है, जिसमें आप खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को बयान करते हैं और उससे लोग बरकत पाते हैं। साथ ये हमारी रूहों को जीतने वाला, दुनिया की तमाम रूहों को जीतने के लिए ये प्रोग्राम बहुत काम कर रहा है। खुदावंद इसे कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह के इरशाद आज़म में से आज आपने सर बयान किया कि यीशु मसीह मुर्दों में जान डाल देता है और बदरूहों को निकालने की कुदरत रखता है। हत्ता कि उसने लाजर को 4 दिन के मुर्दा को जो कब्र में था उसको भी उसने जिंदा कर दिया और वो गवाही बहुत अजीम है। और ये बदरूह है तो यीशु के आगे कोई चीज नहीं, जो उसको मानता है उससे बदरूह निकल जाती है यीशु के नाम से। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम फजले रबी मेरा नहीं है मोहतरम, ये यीशु का प्रोग्राम है। ये आप सबका, पूरी दुनिया की जो अकवाम है सबका प्रोग्राम है। और शुक्रिया आपकी पसंदीदगी के लिए और आपने जो तासुरात दिए हैं उनके लिए शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे? हम सारा जलाल यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है सर कि मैं इधर ना गुजरात शाम की जिला उकाड़ा हॉस्पिटल में सेंट्री वर्कर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर खालिद साहब है ना, वो मुझसे बार बार रिजाइन का मुतालबा करते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, तुम ना नौकरी छोड़ दो तो अच्छी बात है तुम्हारी, वरना वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी के साथ भी पेश आते हैं सर। 3 महीने हो गए, उन्होंने मुझे लीव भी नहीं देते, क्योंकि हर महीने में ना मुलाजम को आता है कि उसे 2 लीव मिलती है, 2 लीव मिलती है। वो 3 महीने हो गए सर, उन्होंने ना मुझे छुट्टी भी नहीं दी और मेरी फौतगी भी इधर मेरे मोहल्ला में हुई है। उजरा शाम की क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 फौतगी हुई। शुक्रिया भाई जी। आपने, आपकी जो बात है वो हम तक पहुंची। आप चाहेंगे कि हम अभी आपके लिए दुआ करें ताकि खुदा
उस डॉक्टर का दिल जो है उसको तब्दील करे और वो जाने कि एक दिन उसको खुदा के सामने खड़े होना है। और जो मौलाना हाली थे उन्होंने लिखा था एक शेर बर्रे सगीर में, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ना जाने लोग क्यों अपने हम जिन्स इंसानों को इंसान समझना भूल गए हैं। कोई और बात करना चाहेंगे भाई? अभी हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। हाँ जी सर, मैं यही ना इसी के जो मौलाना साहब का आपने पढ़ा फिक्रा, उसी के मतलब खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम में थे इस सिनों के नाम, उसका 6 बाप उसकी 9 याद पढ़ूंगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। अब मैं आपको जरा हौसला दे दूं थोड़ा सा प्यारे भाई, आपने जो बात छेड़ी है इसके लिए कलाम खुदा में लिखा है, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और खुदा जो तमाम इंसानों से मोहब्बत रखता है वो इंसाफ का खुदा भी है। और कलाम खुदा में लिखा है, मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, हर तरह की बुरी और नाहक बातें तुम्हारे खिलाफ करेंगे, लेकिन ऐ प्यारे भाई आगे लिखा है, तुम नहायत खुश होना क्योंकि आसमान पर जहां तुम्हारा खुदा है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। इस जमीन पर प्यारे भाई दुखों में से गुजरना, अगर मसीह की खातिर हम दुख सहते हैं, पौलुस कहता है अगर गुनाह करके मुक्के खाए तो क्या हासिल। अगर रास्तबाजी की खातिर अगर कोई मसीही दुख उठाता है, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उसको जलील किया जाता है, उसके साथ नाइंसाफी की जाती है, तो अगर हिम्मत नहीं हारेंगे प्यारे भाई तो खुदामंद आपको अजर देगा। बाइबल ये फरमाती है तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। हम अभी दुआ भी करते हैं बिशप साहब के साथ मिलकर आपके लिए। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे? यही सर, काफी आप मेरे लिए दुआ करें और वो डॉक्टर का भी दिल खुदावंद यीशु मसीह तब्दील करे जो हमें जी शुक्रिया देता, तीसरा महीना गुजरने के बावजूद भी। शुक्रिया शुक्रिया राशिद भाई, बड़ी माफी चाहता हूँ। राशिद भाई आपकी बात हम तक पहुंच गई। अभी एक और कॉलर साथ हैं तो मैं कॉल लेकर फिर आपके लिए दुआ करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए जी। पाकिस्तान से एक दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए जी। हेलो जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्यारे भाई, बात कीजिए। हाँ जी, मैं नवीन बात करो अटक से जी। पेशावर के करीब है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे किस तरह मतलब बात ऐसी होती है कि कुछ जगह पर मतलब बदलुएं होती है, तो कैसे ईमानदार उस जगह पर अगर जाता है तो कैसे यीशु के नाम में फतह पा सकता है? ये अभी दूसरा सवाल है मोहतरम, ये अभी सवाल मेरा दूसरा है जो मैं उनसे कर रहा हूं। अगर और कोई बात हो तो जरूर बताइए। बस यही पूछना था कि अगर किसी जगह पर बदरुओं का मसला किसी घर में किसी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात पहुंच गई। ईमानदार वहां पर जाए तो कैसे वहां पर? प्यारे भाई ये बात पहुंच गई। कोई और बात करना चाहें तो जरूर कीजिए, वरना दुआओं में याद रखिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। कॉल करते रहिए, दीगर दोस्तों को भी बताइए प्रोग्राम के बारे में। बिशप साहब, मेरी दरखास्त होगी कि आप ये जो डॉक्टर उनको तंग कर रहा है, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए अभी इसी लम्हे, ताकि ये जो भाई है खुदा जो वहाँ पर बड़े ओहदों पर हैं उनके दिल में तरस डाले कि वो इस भाई को तंग ना करें। और अगर वो तंग करना बाज ना आए तो भाई को खुदा फजल दे कि वो मसीह की मोहब्बत में उनके साथ रवैया रखे। तो दुआ कीजिए। आइए हम दुआ करते हैं इस भाई के लिए जिन्होंने अभी कॉल की। Father God, we thank you, we praise you for this wonderful opportunity to pray for this man. And Lord, he's going through a rough time at his workplace, especially from the doctor. And I pray, Father God, you touch the man, the doctor, the people who are in authority. They may give favor to him and bless him. And answer his prayer, God, that all this worriness and problem may leave.
and bless him and bless his family. And we pray this, God, in Jesus' name. आमीन। Amen. बिशप साहब ने दुआ की है कि खुदावंद उस डॉक्टर के दिल को नरम करे और इस भाई को भी बरकत दे और उसके लिए बातें जो हैं वो खुदावंद मुस्बत कर दे ताकि वो बरकत वहाँ पर रहे। बिशप साहब सवाल आया, ये मेरा अगला सवाल भी था। जगहें हैं, घर हैं या इंसान हैं, आज़ाद मसीहों के पास ये है कि इख्तियार भी है, तो तरीक़ेकार बताइए क्या क्या करें वो आज़ादी के लिए। अगर बदरू के काम से आज़ादी लेना चाहते हैं, आज़ादी लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है आप पहली बात है खुदावन यीशु मसीह के हाथ में आपकी ज़िंदगी दें। खुदावन यीशु मसीह को पहले कबूल करें और आपकी पूरी ज़िंदगी यीशु मसीह के हाथ में दें। और दूसरी बात है उसके बाद जो भी गुनाह आपके दिल में खुदावन बताता है, आपके ज़हन में बताता है, उस गुनाह को आपने इकरार करें, कन्फेस करें। जब गुनाह कन्फेस इकरार हो गया है, खुदावन यीशु मसीह ने उस गुनाह से आपको आज़ादी देंगे। जब गुनाह को मुआफ़ हो गया, मुआफ़ मिल गया है, फिर बदरू का काम उनका इब्लिस का कुदरत कमज़ोर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। फिर यीशु के नाम से वो बदरू निकल जाएगी। अगर किसी घर में कोई जगह है, कमरा है, घर है, वहाँ पर बदरू हैं, मुझे याद है एक दफ़ा आपके साथ एक घर में थे, तो जादूगर जो हैं वो उनको कहते हैं, वो यूज़ करते हैं कीलना, लफ्ज़ है कीलना, वो घर को कील किया होता है वो बदरूहों के। तो आपके साथ ही वो तजर्बा मुझे हुआ कि एक घर जिसको कीला गया था, तो उसको कैसे आज़ाद कराएं, इंसान जो हैं बदरूहों के कब्जा में उनको कैसे आज़ाद कराएं, क्या करें। जो मसीही हैं वो क्या करें घर को आज़ाद करने के लिए, दुआ करें वहाँ पर जाकर, मसीह का नाम लें, या अगर कोई बदरू गिरफ्तार है उस पर हाथ रखें, कैसे वो क्या तरीकाकार क्या है बाइबल हमें बताती है। अच्छा, बदरू ऐसे इब्लीस है, वो घर को और लोगों को ज़िंदगी में एक राइट्स लेकर वो आ जाता है, वो इख्तियार ले लेता है। हाँ जी। सो अगर घर में अगर बदरू का काम है, कब्जा किया है, हमने ये पूछना खुदा से क्या राइट्स है उनको, क्यों उस घर में वो अंदर है, ये पूछना पड़ेगा कि खुदा हमें बताए कि वजह क्या है कि वो वहां पर कब्जा किए हुए। हाँ जी, वजह क्या है। हाँ जी। सो जब जो आपका दिल में खुदावन डालता है उसको आपने कन्फेस करें, इकरार करें, खुदावन ये घर मेरा घर है, अभी मैं इसमें रहता हूँ और इसलिए खुदावन अजूरी इधर होना चाहिए, बदरू का काम नहीं। सो जब आप इसी तरह का खुदा से मांगते हैं, दुआ करते हैं और आप यीशु के नाम से, उनकी इख्तियार से, अथॉरिटी से, कुदरत से आप बदरू का कह सकते हैं निकालें इस जगह से, ये मेरा घर है और ये खुदा का घर है और खुदा का असूरी इधर आना चाहिए। तो वो अगर जगह पर है, घर है या कोई कमरा है या कोई और जगह जहां पर आप समझते हैं कि बदरूहों का कब्जा है, तो आप यीशु मसीह के नाम से उस जगह को हुक्म देंगे कि वो जगह बदरूहों से आज़ाद हो जाए, बदरूहें चली जाएं। लेकिन उससे पहले बिशप साहब ने वाज़े किया कि ज़रूरी है कि आप खुदा से पूछें वजह क्या है कि वो उस जगह पर काबिज़ हैं। जब आप वजह रूट्स जो होंगी उनको जान लेंगे तो फिर खुदा ही आपको बताएगा कि अब मेरे नाम का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करें और आप वहाँ पर आज़ादी देखेंगे। अगर किसी इंसान में है बदरूहें, उसके लिए क्या करें। इंसान का भी यही बात है, अगर इंसान उनकी ज़िंदगी अगर खुदा के साथ नहीं चलती, फिर बदरू का काम अंदर आ जाता है। और इंसान अगर आज़ादी होना चाहते हैं बदरू से, ऐसे होना कि पहले उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के हाथ में उनकी ज़िंदगी पूरी देना चाहिए, आधा नहीं पूरी देना चाहिए, पूरी ज़िंदगी सरेंडर करें। और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह से आप पूछें, खुदावन मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, मेरी ज़िंदगी में जैसे कुछ चीज़ है कि आपके पसंद नहीं, आपकी लफ्ज़ में वो क्या कहते हैं, आपके कलाम के मुताबिक नहीं है मेरी ज़िंदगी। हाँ जी, आपके कलाम के मुताबिक नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मुझे दिखाएं, मैं उसके बारे में इकरार करता हूँ, उसको छोड़ता हूँ और मुझे आज़ादी दें उसमें से। कभी वो बॉन्डेज हो सकता है, कभी कुछ गंदी मूवी वगैरह लोग देखते हैं,
इसकी वजह से भी दरवाज़ा खोल जाता है उनके अंदर बदरू आने के लिए। और कुछ लोग ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, जज्बाती प्रॉब्लम, हाँ जी, क्या जज्बाती इमोशनल प्रॉब्लम होता है। सो इमोशनल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन और एग्जांपल और गुस्सा, एंगर प्रॉब्लम। अगर गुस्सा किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा उनको कंट्रोल करता है, सो गुस्सा की वजह से दरवाज़ा खुल जाता है और इब्लीस वो उसी रास्ते में उनके अंदर आ जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से वो उनका कब्जा करता है। सो उन्होंने अगर आज़ादी मिलना है, उन्होंने ये कहना कि खुदावन मिसाल के तौर पर गुस्सा है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, गुस्सा को मैंने कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सो खुदावन मुझे आज़ादी दें इस गुस्सा से। और मैं जिनको भी मैंने हर्ट किया, मेरे बीवी को, बच्चे को और किसी का भी मैंने उनको नुकसान दिया गुस्सा की वजह से और हर्ट किया, अभी मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसी माफ़ी की वजह से खुदावन यीशु मसीह उनको आज़ादी देंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये तो होगी कि एक शख्स अगर वो महसूस करता है कि ये शायद बदरू की वजह से ऐसा है तो वो आज़ादी पाएगा मसीह से। लेकिन एक शख्स आपके पास लाया जाता है कि ये बदरू गिरफ्तार है, तो उसके लिए दुआ करें। तो लोगों को आज बताएं कि वो कैसे दुआ करें ताकि जो लोग मरीज को लाए हैं जो बदरू गिरफ्तार है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं या दीगर लोग हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि इख्तियार तो है उनके पास, उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो बदरू गिरफ्तार शख्स आया है, कैसे वो दुआ करें, उसके लिए क्या तरीका होता है कि वो आज़ाद हो जाए। इस फ्रीडम में आज़ादी करने में दो किस्म का आज़ादी मिल जाता है। एक है यीशु के नाम से हम बदर को हुक्म देते हैं कि इस बंदे से निकलें, सो वो आज़ादी एकदम से मिल जाता है, वो आज़ादी उनको मिल जाता है, एकदम से वो बदर भाग जाता है। और एक और है कि जितनी दफ़ा भी आप कहें यीशु के नाम से निकलें और उसी वक्त शायद वो निकल जाता है, दोबारा वो आ जाता है। ठीक है, तो एक तो आपने बताया कि आप नाजरीन पहला तरीका यीशु मसीह के नाम से दुआ करें और ऐसा नहीं हो सकता कि बदरू ना निकले, बदरू निकल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप यीशु के नाम से बदरू को निकालते हैं, वो निकल जाती है लेकिन फिर आ जाती है। तो आप ये बताइए जो फिर आ जाती है उसके लिए क्या करें कि वो दोबारा ना आए। सो फिर आ जाते हैं, फिर इसका मतलब क्या है कि हमने ये पूछना खुदा में इनके जिंदगी में कौन सी दरवाज़ा खोला है और कहाँ उन्होंने अभी तक इकरार नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, कहाँ उन्होंने अभी खुदा के साथ नहीं खड़ा हो रहे हैं। सो ये हमने पूछना कि खुदा से पूछना है और उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आपने गुनाह किया है, जो कुछ आप जानते हैं आपके बारे में, आप बता दें ताकि हमें थोड़ा इजी मिलें कि कैसे आपके लिए दुआ करें ताकि ये बदरू फॉरएवर आपकी हमेशा के लिए निकल जाए। तो नाजरीन दूसरा यह है कि खुदा से फिर पूछना है। रूहुल कुद्स के बारे में लिखा है जब हम करंथियों का खत पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स तय की बातें जानता है, और जैसे गिफ्ट की बात की गई, खुदा की नेमतों की बात की गई कि यह है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, रूहों का इम्तियाज, और ये भी खुदामंद नेमत देता है। बिशप साहब, कुछ लोग आज़ाद नहीं होते, दुआ करें कुछ भी करें, बहुत से लोग हैं वो बदरूहों से आज़ाद नहीं होते, तो उसके बारे में कलाम क्या कहता है? कुछ लोग है ना जल्दी से वो आज़ादी मिल जाता है और कुछ लोग ऐसे प्रॉब्लम है जल्दी नहीं होती, लेकिन वो बार बार हम चर्च आ जाते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, और हमारा काम ये है कि उनका पहले क्रिश्चियन ज़िंदगी, रूहानी लाइफ को थोड़ा उनका मजबूत करें। और बिशप साहब, एक बदरू गिरफ्तार शख्स है, हाँ जी, उसकी रूहानी जिंदगी कैसे मजबूत करेंगे? ये तो एक सवाल है ना। वो है ही बदरू गिरफ्तार, हाँ जी, और आपने फरमाया उसकी रूहानी जिंदगी मजबूत करें, तो ये क्या है? आप इसको खोलिए बात को। ये कुछ बात बन नहीं रही कि एक बदरू के कब्जा में है तो उसकी रूहानी जिंदगी हम मसीही तालीम के मुताबिक ठीक करें, कैसे? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारा व्यूअर्स है जिनको ऊपर बदरू बैठा है और यीशु के नाम से, तो वो बदरू निकल जाएगी, पर जिनको ऊपर बदरू है, कब्जा किया उनको और नहीं निकल रहा है, आते जाते हैं बदरू ऐसे। सो ये बंदा तो 24/7 तो अंदर बदरू का काम नीचे नहीं है। सो उनको तो जब बदरू आता है
कि खुदा का हजूर ही उधर आ जाता है, सो बदरू निकल जाता है, वो बदरू बाहर आ जाता है। अदरवाइज वो तो 24/7 तो अंडर द कंट्रोल ऑफ बदरू तो नहीं है। अच्छा, सो वो इंसान को तौर पे सोच भी सकते हैं, खाना खाते हैं, तो सारा कुछ पढ़ते भी है कुछ लोग, और पेपर भी पढ़ते हैं और न्यूज़ सुनते हैं। सो उनको हम ये सिखा सकते हैं खुदा का कलाम पहले आप थोड़ा सीखें, आपकी रूहानी ज़िंदगी थोड़ा साथ साथ आपको बड़ा समझ करें। आए कि बाइबल मुकद्दस आपकी जिंदगी के बारे में क्या कहती है, खुदा की मोहब्बत आपके लिए क्या है, खुदा ने गुनाहों की मुआफी बख्श रखी है, उसने अपने पाक रूह की कुदरत देने की आपको वादा कर रखा है। तो ये बातें उनको सिखानी चाहिए हाँ जी, ताकि वो खुदा की बरकत से वाकिफ हो सकें। लेकिन अगर फिर भी बदरू रहती है तो फिर क्या नहीं करेंगे? इंसान तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो ये बंदा खुदा का पास आ गया और खुदा का साथ चलता है, फिर भी क्यों बदरू नहीं निकल रही। ये तो इंसान के तौर पर हम सोचते हैं, पर रूहानी तौर पर हम सोचेंगे, बाइबल के तौर पर हम सोचेंगे कि अगर बदरू नहीं निकलती किसी के ऊपर से, किसी की जिंदगी से, मतलब ये है कोई रूट्स प्रॉब्लम है, कोई डोर्स ओपन है, इनकी कोई दरवाजे- वजूहात हैं। हाँ जी, कोई वजह है, कोई लीगल राइट्स है कि बदरू उनके ऊपर बैठा है और कब्जा किया है। उसका तरीका कार क्या होगा? कैसे वो ढूंढे जो रीजन है, जो वजूहात हैं, जो रूट्स हैं, कैसे ढूंढी जाए? उसके लिए रोजा रखा जाए, दुआएं की जाए, क्या किया जाए? कि काफी लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, फिर भी वो बदरू नहीं निकलती। मैंने काफी चर्च में देखा था कि पादरी भी रोजा रखते हैं, और जिन बंदे का ऊपर बदरू है अब फैमिली रोजा रखते हैं, काफी वो दुआ करते हैं कि ये बदरू निकल जाए। काफी लोग मैंने देखा हुआ 10 साल 15 साल ऐसे बदरू के गप्सा में है। लेकिन बात ये रोजा भी रखें, दुआ भी करें, ये सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये बहुत जरूरी बात है। कोई भी शख्स पूरी दुनिया में, बाइबल का ये बहुत वाज़ेह खुला पैगाम, कलाम खुदा का दावा है, और कलाम खुदा में ये तासीर पाई जाती है कि जो दावा और वादा खुदा ताला फरमाते हैं उसके पीछे उनकी पूरी कुदरत होती है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह बदरूहों पर इख्तियार रखते, शैतान पर इख्तियार रखते हैं, बीमारियों पर इख्तियार रखते हैं, और यही इख्तियार उन्होंने अपने शागिर्दों को भी दे रखा है। और आप भी जब इन बातों से वाकिफ होते हैं, खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत, वो जो नहायत मेहरबान और रहीम है, वो जो हय्युल कय्यूम है, जो मोहब्बत का खुदा है, उसकी कुदरत आपके घर में, आपकी मस्जिद में, आपके मंदिर में, आपके चर्च में, आपके घर में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके स्कूल में, आपके मदरसे में महदूद नहीं है, वो फौरन आ जाती है। चूंकि कलाम खुदा में लिखा है, जिस तरह से बारिश बरसती है और सारी जमीन को हरियाली देती है, वैसे ही मेरा कलाम है जो बेतासीर वापस नहीं लौटता। अगर हम इससे वाकिफ होंगे तो वो फल और उन वादों की तकमील देखेंगे जो इस कलाम में हमारे साथ की गई है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कैसे वाकिफ हों लोग सच्चाई से? लोग वाकिफ नहीं होना चाहते। वो कहते हैं जो हमारी तालीम है वो ठीक है। सच्चाई ऐसे है, सच्चाई के गहरा डीप, ये बहुत डीप है। ये तो नहीं जो मैंने पढ़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यही है सारा सच्चाई। अगर कोई पादरी, कोई इंसान ऐसे सोचते हैं कि जो मैंने हासिल किया, पढ़ा, यही सच्चाई है, इसका मतलब वो तरक्की नहीं करना चाहते। खुदा सिखाता रहता है, अपनी बातें खोलता रहता है। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया, जो आप बात कर रहे हैं कि रूहुल कुद्स आएगा, वो तुम्हें जो कुछ मैंने सिखाया है याद दिलाएगा और आने वाले वक्त की खबरें देगा, वो तुम्हें सिखाता रहेगा। तो ये बात आप कर रहे हैं कि मुसलसल सीखना चाहिए खुदा के रूह से। सीखना चाहिए। सच्चाई सीखने के लिए हम टॉपिक बाय टॉपिक हमने सीखना चाहिए। अगर अपने सीखना चाहते हैं बदरू को कैसे निकालना है यीशु के नाम से, उसके बारे में काफ़ी किताब है, बाइबल का रेफरेंसेस है, वो अच्छी पढ़ें, समझें, ताकि आपकी नॉलेज में
आपका वो सच्चाई आप जानते हैं, अभी सच्चाई जानने की वजह से आप किसी को भी सिखा सकते हैं। सच्चाई जानना और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये बात आप कर रहे हैं। तो क्या हर एक मसीही बदरू निकाल सकता है? हर मसीही बदरू निकाल सकता है? वो यीशु के नाम से कह सकता है बदरू निकल जाओ, निकल जाएगी? ये थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदावन यीशु मसीह ने गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर आप बिलीव करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप ईमान रखते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। जी, ये मैं आयत बिशप साहब जो फरमा रहे हैं ये आपके लिए मैं पढ़ देता हूं ताकि तमाम लोग पूरी दुनिया में इस आयत को सुन लें। ये खुदावंद का कलाम है जो हम सब के लिए है, ख़ास तौर पर जो यीशु मसीह को खुदावंद मानते हैं उनका ये इख्तियार है। यहाँ पर लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। ये खुदावंद का वादा है। तो एक यहां पर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बिशप साहब। याकूब के खत में लिखा हुआ है, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो और बाइबल में यह भी लिखा है कि खुदा तुम्हारी जंगें लड़ता है। अच्छा, तो दीगर आयत भी हैं। तो खुदा क्यों नहीं मुकाबला करता? ईमानदार क्यों मुकाबला करे? और ये मुकाबला क्यों करना चाहिए? मुकाबला ऐसे होता है कि बदरू के खिलाफ खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं सारा इतिहार जो मेरे पास है मैं आपको देता हूं। सो खुदा ने हमारे हाथ में उनका कुदरत और इतिहार दे दिया। शुक्रिया नाजरीन, आप ये बात सुनिए कि मुकाबला करना ये है कि आपको इख्तियार दिया गया है। अब खुदा ने कहा कि अब ये काम आपने करना है, आपको मैंने इख्तियार दे दिया है। तो इसलिए खुदा कह रहा है कि मैं तो कादिर मुतलिक हूं, खुदामंद तो मददगार है, लेकिन वो कहता है मैं अपना इख्तियार अब तुम्हें देता हूं। हुजूर मसीह ने फरमाया, जैसे बाप ने मुझे भेजा वैसे तुमको भेजता हूं। जो इख्तियार बाप ने मुझे दिया मैं तुमको देता हूं। तो इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की बात की गई है यहाँ पर। एक कॉलर हमारे साथ है बिशप साहब, कॉल लेते हैं और फिर बात को जारी रखेंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी सर, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। जी, अमेरिका से बात कर रहे हैं, जरूर कीजिए। मैं आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम करने पर बहुत ही खुश आमदीद कहता हूँ। फजल रबी प्रोग्राम जो है ये बहुत सी जिंदगियों को चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है। इसके लिए आपको मैं पूरे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं और लोगों तक खुदा के कलाम की सच्चाई को लेकर जाते हैं। शुक्रिया जनाब। सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। आज के मौजू के ताल्लुक से कोई बात आप बयान करना चाहें? हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। बहुत टाइम होता है कि लोग बदरू गिरफ्तार होते हैं, वो इबादतगाहों में भी आते हैं, दुआ भी होती है, लेकिन जब बदरू नहीं निकलती तो लोग एक तरीके से कहना शुरू कर देते हैं कि किसी डॉक्टर को भी चेक करवाए, कहीं और मसला तो नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमारे लिए अच्छे तासुरात और ख्यालात का इजहार किया। हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। ये शो मैं फिर कहता हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह का शो है और तमाम कौमों के लिए है, उसकी बरकत पाने के लिए ये एक शो है जो उसने हमें दिया है। सारा जलाल और उसको हम शुक्रिया कहते हैं। आपने जो सवाल उठाया है इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल जो कहते हैं, या रूहानी, तो उसके लिए बिशप साहब ने पहले फरमा दिया कि हमें खुदावंद से इम्तियाज़ की जो रूह है वो मांगना है
और खुदा का रूह मदद करता है और फिर ये बात खुल जाती है कि ये रूहानी मसला है या इसको दीगर जो हमारे पास तरीकाकार हैं उन तरीकों से इसको हल करना है। सो बहुत शुक्रिया जनाब। बिशप साहब तो जी बात कीजिए जनाब। हाँ जी, बदरू गिरफ्तार बंदा जो है वो आपके सामने जाहिर है, लेकिन निकलती नहीं, तो काफी दुआ करने के बाद या प्रेयर्स करने के बाद फिर भी नहीं निकलती, तो फिर वो कहते हैं कि मैं भी ये कोई और मसला है, इसको चेक करवाया जाए डॉक्टर से। सबके सामने है लेकिन नहीं होता, निकलती नहीं है लोगों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। जनाब बदरू नहीं निकलती, फिर भी डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, फिर भी मसला हल नहीं होता। यही वो बात करना चाह रहे हैं जो मैं समझा हूं कि डॉक्टर को भी दिखाएं, बदरू उधर से भी नहीं निकलती, मसला वहीं रहता है। तो इसके लिए क्या आप तजवीज़, आपने पहले भी बताया, वैसे फिर क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर बदरू का काम है, बदरू के कब्जा किया है, डॉक्टर के पास जाने में से तो बदरू नहीं निकलेगी। डॉक्टर ये हेल्प कर सकते हैं कि उनका साइकोलॉजिकल तौर पर कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं और उनका स्टडी कर सकते हैं कि अच्छी पॉजिटिव सोचें इस तरह का। लेकिन अगर हम दुआ करते हैं, किसी पादरी ने किसी चर्च में उनको दुआ किया है और जानते हैं कि ये बदरू का काम है, सो अगर बदरू का काम है सो डॉक्टर के पास जाने में से तो आसानी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी बदरू का काम है और बीमार भी है, डॉक्टर के पास जाएं, नो प्रॉब्लम, वो आप जो जाना चाहिए। लेकिन जो खुदा का हाथ आ जाता है, खुदा का पास आ जाते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम में बदरू निकलना चाहिए। अगर ना निकलते हैं, मैं पहले भी हमने ये इस बात को जिक्र किया है, अगर ना निकलते हैं वजह क्या है, वजह अपने ढूंढना है। वजह ये हो सकता है कि कोई दरवाज़ा उनका ज़िंदगी में खोला है, कभी वो नहीं जानते क्या दरवाज़ा है। उनका ज़हन में तो वो सोचते हैं कि मैंने सारा कुछ मैंने इकरार कर लिया है, सो जो मेरे जितनी याद है मैंने इकरार कर लिया है। सो इसलिए वो सोचते हैं मैं सारा इकरार कर लिया हूँ, मैं खुदा का हाथ में मेरा ज़िंदगी दे गया है, लेकिन बदरू अभी भी नहीं निकल रही। मैं ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा एक दिन फास्टिंग में, अगर नो फास्टिंग, आप खुदा का अजूरी के सामने बैठे, खुदा से मांगे, खुदावन ये बदरू क्यों नहीं निकल रही, वजह क्या है, मेरे ज़िंदगी में क्या दरवाज़ा खोला है, मैं कैसे इकरार करूं। कोई गुनाह ऐसे है कि मेरे नज़र में नहीं आ रहे, सो आप दिखाएं, क्योंकि खुदावन एक लाइट है, गॉड इज लाइट। और अगर खुदा का लाइट, खुदा का रोशनी हमारा अंदर आ जाता है, कोई डार्कनेस, कोई तारीकी उधर नहीं बैठ सकते। बहुत शुक्रिया। अगर खुदा की रोशनी, जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जब उसकी रोशनी अंदर आ गई है तो फिर तारीकी रह नहीं सकती। अब अगर तारीकी रह रही है तो जैसे बिशप साहब ने फरमाया कि खुदावन से पूछिए वजूहात क्या हैं, और कलामे खुदा का ये वादा है, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुम पर खोलूंगा। ये खुदा का वादा है। बिशप साहब, बहुत सी हस्तियां आई हैं इस दुनिया में। खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में जो पेशन गोई पैदाइश की किताब में है कि वो एक आएगा जो औरत की नस्ल से पैदा होगा और सांप उसकी एड़ी पर काटेगा। तो जब हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए, और उसने अबलीस को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो आप इस पर रोशनी डालिए कि यीशु मसीह की खिदमत का ये बहुत बड़ा हिस्सा, यीशु मसीह आए और उन्होंने अबलीस को, गुनाह को और मौत को जो इंसान पर कब्जा किए हुए थी उसको शिकस्त दी है। तो ये यीशु मसीह की जो ये खिदमत है, ये जो उनका गलबा है, लोग इनको कैसे समझें आज और बरकत पाएं? देखिए, पहले खुदावन यीशु मसीह का कलाम में जो भी हम पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह ने जो प्रॉमिसेस हमें दिया है उसको हमने सच्चाई दिल से मानना चाहिए और बिलीव करना चाहिए। ईमान रखना, ईमान ऐसे रखना कि खुदावन ईमान रखना, ईमान ऐसे रखना कि खुदावन लफ्ज़ से
आयत से अपने ईमान ऐसे रख रहे हैं यीशु मसीह ने जो कहा है वो सच्चा है. सो 1 John chapter 3 verse 8 में कहा है ये खुदावन यीशु मसीह he came to this world to destroy the works of the enemy, the works of the devil. खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो मकसद है वो बयान हुआ है इस आयत में कि वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, हमेशा के लिए उसको बेदखल करने के लिए जो भी उसके पास कुव्वत थी वो आए हैं. तो जो ये ईमान रखता है बिशप साहब, फिर वो क्या करेगा, कैसे वो ये सारी बरकत पाएगा? ईमान अगर खुदावन यीशु मसीह के बाइबल से और यीशु मसीह के ऊपर हम रखते हैं, जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया उनके स्क्रिप्चर में, आयत में जो कहता है वो हमारे ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आना चाहिए. ये एक फल है. खुदावन यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, एक फल होना चाहिए. कभी दुनिया में चैलेंज तो होंगे, लेकिन उस चैलेंज में हमारा डिफरेंस यही है, उस चैलेंज को हम अकेले हम ओवरकम नहीं करते. अकेले तो हम गालिब नहीं रहते, अकेले अपनी ताकत से गालिब नहीं. अपना ताकत से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के साथ साथ उनकी ताकत से, उनकी कुदरत से, उनके प्यार की वजह से, खुदा का प्यार हमारे ऊपर है. सो जब हम खुदा के साथ प्यार कर खुदा को प्यार कर खुदा के साथ चलते हैं, इस लफ्ज़ सारा कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ है उसका लाइफ होता है, उसका कुदरत होता है, हमें ताकत देते हैं हर हालात को हम ओवरकम करें, तमाम हालात में हम गालिब ज़िंदगी गुजार सकें. अगर कोई शख्स यीशु मसीह की तालीम को कबूल कर लेता है तो वो जो कुछ वादे हैं वो उसकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं. हाँ जी, बहुत शुक्रिया बिशप साहब हमारे साथ हैं, बात कर रहे हैं बदरूहों से रिहाई और बदरूहों पर फतह. अभी थोड़ी देर में मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करने जा रहा हूं कि वो पूरी दुनिया में जो लोग बदरूहों से दुख उठा रहे हैं या जादू के असर के नीचे हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे. अगर आप पूरी दुनिया में हमारा शो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको आज़ाद करे, तो भी मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करने जा रहा हूं कि वो दुआ करें. आप लोग जहां जहां भी हैं, आप अपने टीवी सेट के करीब आ जाइए और बिशप साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग जादू के असर के नीचे हैं, बदरूहों के असर के नीचे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज वो आज़ादी पाएं. तो बिशप साहब आप उर्दू में दुआ कर लेंगे या इंग्लिश में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे. ठीक है, आप इंग्लिश में दुआ कीजिए, फिर मैं उसका तर्जमा कर दूंगा, ताकि ये शो अभी पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग और ये फिर वेबसाइट पर, यूट्यूब पर भी आने वाले दिनों में चलता रहेगा, ताकि लोग यीशु मसीह के नाम से तो वाकिफ़ हैं, तालीम से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन उसकी कुदरत जो जिंदगियों में इस तरह से काम करती है कि तारीकी को ख़त्म कर देती है, शायद उससे वाकिफ़ नहीं है. तो आज आप सब यीशु के नाम की कुदरत से वाकिफ़ हों. बिशप साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो दुआ करें. जो जादू के नीचे हैं लोग, मैजिक के नीचे हैं, बदरूहों के कब्जा में हैं, कि यीशु मसीह के नाम से आज वो आज़ादी पाएं. बिशप साहब आप दुआ फरमाइए. लेट्स प्रे. आइए हम सब दुआ करें. सब अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुका लीजिए. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मसीही हैं. अगर इब्लीस के किसी भी शिकंजे में, किसी भी तरह से उसके असर के नीचे हैं, यीशु मसीह के नाम की कुदरत आपको आज़ाद कर सकती है. आइए उस नाम की कुदरत से जो आज़ादी मिलती है उसको लेने के लिए तैयार हो जाए. दुआ करने से पहले हम ये कहेंगे कि मेरे हाथ में और मेरा दुआ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन खुदा का हाथ में यीशु मसीह के नाम में कुदरत है. सो आपके ईमान यीशु मसीह के ऊपर रखें, ताकि वो आपको आज अभी इसी वक्त आज़ादी दें, शिफा दें. जो आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह से मांगे. मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अभी इसी वक्त खुदा आपको छुएंगे. और मैं ये साथ कर दूं बात ये भी कि मांगना आपने कैसे है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको मंत्र पढ़ने की, कोई आयत पढ़ने की ज़रूरत नहीं. सादा ये कहें, ए यीशु मसीह नासरी मुझ पर रहम कर. बस, ए यीशु मसीह नासरी मुझ पर रहम कर, मुझे आज़ाद कर, मेरी मदद कर. बस इतना कहिए. फिर देखिए वो जिंदा हैं. ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, वो जिंदा हैं, मौजूद है इस वक्त
और मैं आपको दावे से ये कह रहा हूं पूरी दुनिया के लोगों को, यीशु मसीह जिंदा हैं और उनके नाम में कुदरत पाई जाती है। उनको पुकारिए और देखिए, अपना मौजज़ा रिसीव कीजिए, अपना मौजज़ा अभी उनसे ले लीजिए। वो मौजज़ात की बरसात करने वाले हैं और उस बरसात में कमी नहीं है। वो जारी थी, वो जारी है और जारी रहेगी। बिशप साहब दुआ फरमाइए। Let's pray. Father God, I thank you and I praise you for this wonderful time. And I pray for every brothers and sisters are watching this program right now, wherever they are, whichever country they are from. Right now, Lord, I pray, reach out and touch them and set them free by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, I rebuke every demonic assignment against their life. I rebuke every spirit of infirmity and disease. I command you to leave my brothers and my sisters and their family in Jesus' mighty name. Every witchcraft, every spell, every envy and jealousy that coming against them, against their life, against their finances, against their marriage, against their children, I command that to leave right now in Jesus' mighty name. Right now, the Holy Spirit is telling me that someone is watching. You have met in accident, and because of accident, your neck have a problem. Your spinal cord have a problem, but mainly on the neck side. On the neck side, you have a pain right now. Jesus is touching you. Receive your healing. Receive it by faith, and you are healed in the name of Jesus. Amen. There's another person, you have a problem on your kidney, and God is touching your kidney right now. Receive your healing in the name of Jesus. This healing is yours in Jesus' name. You can receive your healing right now in the name of Jesus. I'm also watching this, seeing in my spirit, there's a family, husband and wife. You are about to get divorced because of a lot of problems. Both of you are not getting along. And this is a work of the Satan, the Iblis ka kaam hai. Now, right now, God is setting you free from that demonic spirit that's trying to destroy your marriage. I command that demon, leave. Spirit of divorce, I command you to leave that family right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Those, Lord, still continue praying. Touch them from the crown of their head to the very sole of their feet. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. बहुत शुक्रिया बिशप अम्बा साहब हमारे साथ थे और आज हमने उनके साथ बदरूहों से रिहाई और फतह पर बात की है। मेरा ईमान है कि आप लोगों को बरकत मिली होगी। जिन्होंने कॉल की उनके लिए भी शुक्रिया। और यहाँ पर मैं एक और आयत आप सबको देना चाहता हूँ। लिखा है, गर्ज खुदामंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की तरफ दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदामंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से रिहाई का मौजज़ा आपका है, नजात का मौजज़ा आपका है और उसकी मोहब्बत में भर जाने का मौजज़ा यीशु के नाम से आपका है। खुश रहिए, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ आपका मेज़बान दानियाल।